In the last lecture, we have seen the definition of system, surrounding, and the types of system and the properties of system. Today we will discuss about the first is state function. Consider a certain amount of gas enclosed in a cylinder. यहाँ पर हम गैस को सिलेंडर में ले रहे हैं. कंसीडर अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड दिस गैस हैव प्रेशर 1 bar and here the volume is 1 decimeter cube, that is V, and the temperature is 300 Kelvin, and these are the initial pressure, volume and temperature. So it is represented by P1, V1 and T1. तो यहाँ पर हमने सर्टन अमाउंट ऑफ गैस लिया हुआ है सिलेंडर में, जिसका इनिशियल प्रेशर है 1 bar और इनिशियल वॉल्यूम है 1 decimeter क्यूब एंड इनिशियल टेम्परेचर इज that is T1 300 Kelvin. Then after some time its pressure, volume and temperature change. After some time the pressure becomes 2 bar and here the volume is changes from 1 decimeter cube to 0.5 decimeter cube and T2 is 300 Kelvin, and these are the final state. These P1, V1, T1 are the initial state and P2, V2, T2 are the final state. So here the pressure, volume and temperature are used to describe the system. The pressure, volume and temperature are used to describe the system. यानी ये तीनों जो फंक्शंस है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये हम यूज़ कर रहे हैं टू डिस्क्राइब द सिस्टम, यानी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट ऑफ सिस्टम. ये जो प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द स्टेट फंक्शन. ध्यान से देखो यहाँ पर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इज इनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड दीज गैस हैव इनिशियल प्रेशर, दैट इज P1 is 1 bar, its initial volume V1 is 1 decimeter cube and its temperature T1 is 300 Kelvin. After some time the pressure is changed, that is P2 is equal to 2 bar and volume is changed, V2 is equal to 0.5 decimeter cube and temperature is 300 Kelvin. So these P2, V2, T2 are the final state. So here the pressure, volume and temperature are used to describe the system. ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमने सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है. सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन. ऐसे प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर कहेंगे स्टेट फंक्शन. तो इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट फंक्शन. क्या है, देखो यहाँ पर डेफिनेशन. इट इज the physical properties, it is a physical property which depends upon the initial and
final state of the system. These are the property which depends upon the initial and final state of the system. It does not depends upon the path. ये ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होते हैं. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन. इसी को हम यहाँ पर नाम देंगे स्टेट फंक्शन. सो डेफिनेशन देखो यहाँ पर. इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. मीन्स ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होते हैं. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन. Then second important term which is used, which is the path function. Second जो definition देखेंगे वो है path function. It is the property which depends upon the path. It is the property which depends upon the path are called path function. ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ पाथ पर डिपेंड होते हैं उसे हम पाथ फंक्शन कहते हैं. ये हो गई सेकेंड डेफिनेशन. उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन. तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन. अब यहाँ पर हम लेंगे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी that is U. These etc. are the examples of state function. Similarly, there are some examples of path function. They are the heat and work. These are the two path functions. So in this way we define the state function and path function. The next point is thermodynamic equilibrium. Consider a gas enclosed in a cylinder. यहाँ पर हम गैस को सिलेंडर में ले रहे हैं. हैविंग द प्रेशर P1, its volume V1 and its temperature is T1. These are the state functions. अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा प्रेशर, टेम्परेचर and volume are the state function. So these are the state function which does not change. ये जो state function है ये यहाँ पर change नहीं हो रहे. They are does not change or they are constant. Or they are constant. Means this system is in thermodynamic equilibrium. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस को हमने सिलेंडर में इनक्लोज किया हुआ है जिसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P1, V1, T1 है. मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द स्टेट फंक्शन एंड दिस स्टेट फंक्शन डज नॉट चेंज विथ टाइम. मीन्स दे आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हियर देर इज नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस. यहाँ पर हीट में भी चेंज नहीं आ रहा. देर इज नो हीट एक्सचेंज. इट मीन्स दैट दिस सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. यानी इस सिस्टम में स्टेट फंक्शन
does not change or they are remains constant with time. Such type of system is called, it is in thermodynamic equilibrium. Now, the piston is move upward. अब यहाँ पर जो उसका सिलेंडर का जो पिस्टन है, ढक्कन है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है. मीन्स द गैस इज एक्सपांड. इसका मतलब यहाँ पर गैस एक्सपांड हो रही है. इट मीन्स हियर द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज चेंज. यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आ रहा है. इट मीन्स दिस सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. ये सिस्टम को हम बोलेंगे इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और इट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. दिस सिस्टम इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और इट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, इसलिए ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे इट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट और इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल में हमने सिलेंडर में गैस ली हुई है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम P1 है और टेम्परेचर T1 है. प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दीज आर द स्टेट फंक्शन. और ये जो स्टेट फंक्शन है दे आर डज नॉट चेंज, मीन्स दे आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. देर इज नो हीट इज एक्सचेंज. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड, इट इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन सेकेंड केस में हम देख रहे हैं नाउ द पिस्टन इज मूव अपवर्ड. यहाँ पर जो सिलेंडर का जो पिस्टन है वो ऊपर उठ रहा है, मीन्स गैस इज एक्सपांड एंड ड्यू टू विच द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इज चेंज एंड देयरफॉर here we say that it is not in thermodynamic equilibrium or it is in non-equilibrium state. अब हम देखेंगे what is the definition of this thermodynamic equilibrium. अभी हमने एग्जाम्पल देखा जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पहले सिस्टम का स्टेट फंक्शन जो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. देयरफॉर दिस सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. और सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि पिस्टन इज मूव अपवर्ड, द गैस इज एक्सपांड. सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि गैस एक्सपांड हो रही है, इसलिए इसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है. देयरफॉर इट इज नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम और इट इज इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function does not change. Its state function does not change with time. ये है definition of thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium when its state function does not change with time. It is called thermodynamic equilibrium. The next point is process. So first we see the definition of process. It is a transition. Process is a transition
from one equilibrium state to, it is a transition from one equilibrium state to another. Process means change from one equilibrium state to another, or it is a transformation of one equilibrium state to another. It is called process. तो प्रोसेस का मतलब है ट्रांजिशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ प्रोसेस. अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेस. सो देर आर 5 types of process. The first one is isothermal process. The first one is isothermal process. Iso means same and therm, it is related to temperature. Means it is a process. It is a process in which the temperature of the system remains same. यह ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो होता है वो रिमेन्स सेम होता है. द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, और रिमेन्स सेम और रिमेन्स कांस्टेंट. Such type of process is called isothermal process. See the definition. It is a process in which the temperature of the system remains constant. Means here T1 is equal to T2. Means यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी T1 इज इक्वल टू T2. देयरफॉर डेल्टा T दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0. इसलिए यहाँ पर डेल्टा T जो है दैट इज T2 माइनस T1 ये 0 होता है. एंड इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दैट केस द इंटरनल एनर्जी of the system is also constant. If the temperature is constant, then internal energy, that is U of system, remains constant. यहाँ पर U भी क्या होता है, remains constant होता है. Therefore डेल्टा U is equal to 0. यानी जहाँ पर डेल्टा T 0 होता है वहाँ पर डेल्टा U भी 0 होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दैट केस द Q इज नॉट इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पर जो Q होता है इट इज नॉट इक्वल टू 0. मीन्स हीट इज नॉट इक्वल टू 0. और इन दिस प्रोसेस द हीट इज एक्सचेंज with the surrounding. So the first type of process is isothermal process. It is a process in which the temperature of the system remains constant. Therefore T1 is equal to T2. Therefore delta T, that is T2 minus T1, is equal to 0. When the temperature is constant in that system, the internal energy is also remains constant. Therefore delta U is equal to 0. But here the heat is exchanged with the surrounding. Therefore Q is not equal to 0. The second type of process is isobaric process. This bar is related to the pressure. The bar, it is unit of pressure. So this process is related to the pressure. So it is a process in which the pressure of a system remains constant. It is a process in which the pressure of a system remains constant. ये ऐसा प्रोसेस होता है
जिसमें प्रेशर जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मीन्स P1 is equal to P2, therefore delta P, that is P2 minus P1, is equal to 0. So it is a isobaric process. Then one important thing is the isobaric process should be carried out in open container. क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट होता है, सो इट शुड बी कैरिड आउट इन अ ओपन कंटेनर. द थर्ड टाइप इज isochoric process. In this process, or the process in which the volume of the system is remains constant. इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पर सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स V1 is equal to V2, therefore delta V2 minus V1 is equal to 0. So it is a process in which the volume of a system remains constant, means V1 is equal to V2, therefore delta V2 minus V1 is equal to 0. Here this process should be carried out in closed container. Isochoric process carried out करने के लिए container should be closed, then only the process is isochoric, where delta V is equal to 0. And the fourth type of process is adiabatic process. The fourth type of process is adiabatic process. It is a process in which the heat of a system remains constant. It is a process in which the heat of a system remains constant. Means here there is no exchange of heat inside and outside the system. Means there is no exchange of heat inside or outside the system. It is called adiabatic process. तो फिर से इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनो. It is a process in which the heat of a system remains constant, means there is no exchange of heat inside or outside the system, means here Q is equal to 0, means at that time delta U is not equal to 0 and delta T is also not equal to 0. So it is the fourth type of process. The next type of process is a reversible process. Consider a cylinder. In that cylinder, the gas is enclosed, and these gas have the pressure, that is P, and this pressure of a gas is called here the driving force. यहाँ पर हमने गैस को सिलेंडर में इनक्लोज किया हुआ है और जिसका प्रेशर है P, जिसे हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स. एंड हियर देयर इज अ मूवेबल पिस्टन, और इस सिलेंडर को हमने एक पिस्टन लगा हुआ है, दैट इज अ मूवेबल. इट इज द मूवेबल piston.
Here the external pressure is act, that is P external, and this external pressure is called opposing force. This external pressure is called opposing force. ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने गैस को सिलेंडर में इंक्लोज किया हुआ है जिसका प्रेशर P है, यानी प्रेशर ऑफ ए गैस इज P, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स, एंड इट इज फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन, जिसको हमने मूवेबल पिस्टन से बंद किया हुआ है, एंड हियर द एक्सटर्नल प्रेशर इज एक्टेड, दैट इज P external, that is called opposing force. In the reversible process, the difference between the driving force and opposing force is very small. In reversible process, the difference between the driving force and opposing force is very small. Here the driving force is slightly larger than the opposing force. Therefore, if you increasing the opposing force, the process becomes reverse. तो यहाँ पर याद रखना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस होता है वो वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है दोनों में, एंड ड्राइविंग फोर्स इज स्लाइटली लार्जर देन अपोजिंग फोर्स. यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा बड़ा होता है अपोजिंग फोर्स के. सो इफ यू इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स, द प्रोसेस इज रिवर्स. अगर हम इंक्रीजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाता है. सो हियर द डेफिनेशन ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस इज दैट इट इज अ प्रोसेस in which the driving force is, here the driving force is infinitesimally greater than the opposing force. Means the driving force is slightly greater than the opposing force. So here if you increasing the opposing force, the process becomes reverse. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पर याद रखेंगे हम जो गैस का जो प्रेशर है उसको हम यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स बता रहे हैं, और जो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर एक्ट हो रहा है उसको हम अपोजिंग फोर्स कह रहे हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. इसलिए जब हम अपोजिंग फोर्स को यहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज करते हैं तो प्रोसेस जो है वो रिवर्स होता है. सो द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द ड्राइविंग फोर्स इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स. So it is the definition of reversible process.